Yes, we were doing lesson agriculture, and yesterday we have started the exercises of this chapter. You have done first two questions of this lesson, and today I'm going to start with what do you mean by shifting cultivation, and also write its disadvantages. Disadvantages भी बताने हैं हमने shifting cultivation के. Is it clear? So first, define shifting cultivation. So how to write shifting cultivation? Yes, hurry up, Kana. Good. They practice in cooking forest of Amazon basin. I think no need to write here के Amazon basin. Sit down. अब एक minute. Yes, it's correct. The shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. You can write like this now. Define shifting cultivation, and you can start like this. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Next, it is known by different names. It is known by different names. It is known by different names in different parts of the world. Different parts of the world. अब आप वो names बताओगे. Is it clear? Name बताओगे अब आप. First. First आप बताओगे zooming. Zooming in Northeast India. Zooming in Northeast India. Milpa in Mexico. Milpa in Mexico. Roca in Brazil. Ladang in Malaysia. MCQ for MCQ, these can be asked. Okay, so you have to write here now. आप यहीं पे लिख लो आपको, ताकि MCQ में भी आए तो आपको प्रॉब्लम ना आए. It is known by different names in different parts of the world. आप यहाँ पे सारे चाहे ना लिखो, but you have to learn. Okay, चाहे आप सारे मेंशन ना करो, आप एक बार मेंशन करके एक्सेट्रा लिख दो, but you have to learn for MCQ. For example, आप कह सकते हो मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राजील, एक्सेट्रा वर्ड कर सकते हो. क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो, बट फॉर MCQ you have to learn all. ठीक. अब in this plot of land is cleared by felling the trees and burning them. In this plot of land is cleared by felling the trees and burning them. Next, then seeds are sown in the ashes. Then seeds are sown in the ashes. Cultivators live on the plot till soil. Cultivators live on the plot till soil loses its fertility. Till soil loses its fertility. And then they shift to the next plot. Then they shift to the next plot. Crops like maize, potatoes, cassava, or etc. are grown. Crops like potatoes, maize, cassava, etc. are grown. It is also known as wooden agriculture. Not given, you can write. It is also known as
Feudal. It is also known as Feudal agriculture. feudal agriculture. Is it clear? Next, B part of this topic. Its disadvantages are as under. You have to write here its disadvantages. अभी यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ. Listen carefully. It's not given in the book. When British came to India, na, the British controlled the forest areas. They brought forest areas under their control, and forest dwellers had to leave the forest areas. British banned shifting cultivation because British needed timber wood. Expensive होती थी, अभी भी बहुत expensive है timber. तो British needed timber wood. वो सारी timber wood अपनी कंट्री एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड में ओक ट्रीज जो थे ना, OAK got disappeared. तो British needed timber wood. उन्हें एक तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाने थे, उन्हें स्लीपर्स बनाने थे, और साथ में उन्हें पैलेसेस बनाने थे, तो शिप्स, ये सबके लिए उन्हें क्या चाहिए थी? टिम्बर वुड. तो उन्होंने सर्च पार्टीज इंडिया में भेजी फॉर टिम्बर ट्रीज. ये टिम्बर ट्रीज आप जितने भी हैं उनको कटवाओ और वुड एक्सपोर्ट ब्रिटेन करवाओ. तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था? Cultivators burned the forest areas. You know it very well. और by felling trees हमने अभी किया. तो ब्रिटिश को लगता था कि कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ना उनकी एक्सपेंसिव टिम्बर वुड जो है ना वो बर्न हो जाएगी. ये लोग तो फॉरेस्ट एरियाज को आग लगा देते हैं, तो इससे कौन सी वुड साथ में जल जाएगी? एक्सपेंसिव टिम्बर वुड. तो ब्रिटिश ने टिम्बर शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगाया. तब इन कल्टीवेटर्स ने प्रोटेस्ट भी किए थे, फॉरेस्ट डिवेलपर्स, और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए और रिवोल्ट हुए थे. डिफरेंट पार्ट्स में ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किए थे अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन था ये. एंड ब्रिटिश बैंड दिस ऑक्यूपेशन. तो क्यों बैन की? क्योंकि इससे क्या उनकी क्या स्पॉइल हो रही थी? बाय बर्निंग. ब्रिटिश feared that by burning timber would also get burned. उनको था कि ये लोग फॉरेस्ट एरियाज को आग लगाएंगे, हमारी टिम्बर वुड साथ में ही जल जाएगी. उन्होंने इस ऑक्यूपेशन को बैन किया था. ठीक है, अब हमने ब्रिटिश का तो बताना नहीं है, मैंने वैसे बताया है कि कहीं ना कहीं इसमें आप ये भी एक बात मेंशन कर सकते हो, इसमें फॉरेस्ट एरियाज को जलाया जाता था, आग लगाई जाती थी, बर्न किया जाता था क्लियर करने के लिए. तो कहीं ना कहीं दूसरी जो और ट्रीज होते थे वहां पे उनको भी लॉस होता था, वो भी साथ में जल जाती थी. एक्सपेंसिव वुड साथ में कई बार जल जाती फॉरेस्ट एरियाज में. तो इसलिए भी ये भी डिसएडवांटेज में आप मेंशन कर सकते हो, बट प्रेजेंट टेंस में पूछा तो प्रेजेंट में आंसर दीजिए. तो व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? अब आपने इसकी डिसएडवांटेजेस बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कहोगे कि डिफॉरेस्टेशन, इट लीड्स टू वेरी गुड, क्योंकि हम खुद भी कह रहे हैं बाय फेलिंग द ट्रीज इट लीड्स टू यस. नेक्स्ट, आप सेकंड पॉइंट बता सकते हो, सॉइल इरोजन. इट लीड्स टू सॉइल इरोजन. नेक्स्ट, स्मॉल पैचेस फॉर कल्टीवेशन. इन दिस आप बताओ कि कल्टीवेटर्स हैव ओनली स्मॉल पैचेस फॉर कल्टीवेशन. उनके पास तो एक लिमिटेड प्लॉट ही है ना. इन दिस कल्टीवेटर्स हैव ओनली स्मॉल पैचेस फॉर कल्टीवेशन. पैचेस स्पेलिंग PAT. In this cultivators have small patches for cultivation. Next, क्या आप अपने आप बताओ, एक लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए काफी है? No, not sufficient for feeding a large population. Not sufficient for feeding a large population. Not sufficient for feeding a large population.
Next, sometimes while burning expensive wood would also get burned. Sometimes by burning expensive wood such as, आप लिख दो, such as timber, expensive wood such as timber would also get burned. Timber is also mentioned, do not such as timber wood. Sometimes by burning expensive wood such as timber would also get wood. Timber, wood, फिर wood दूसरा, wood इकट्ठे नहीं कर देना, एक wood WOOD है, दूसरा wood, बोलो हाँ, कहीं ये कंफ्यूज नहीं होना. Sometimes by burning expensive wood such as timber wood also get burned. Is it clear? I think enough. Next is, what is plantation agriculture? सबसे पहले तो प्लांटेशन में एक बात बताओ, यहाँ पे कितने तरह की फ्रूट्स होगी? वेरी गुड, आपका एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ. नॉट ओनली टी, और भी है बहुत सारी. हाँ जी, नेक्स्ट. अब एक मिनट, फार्म्स मैकेनाइज्ड होते हैं कि नहीं? मैकेनाइज्ड. और बताओ इसके लिए स्मॉल एरिया और लार्ज? आप बताओ कैपिटल एंड लेबर्स. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिक्वायर्ड. अब बताओ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा चाहिए इसको? डेवलप. इट रिक्वायर्स डेवलप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. अब ये कौन सी एरियाज में पाई जाती है प्लांटेशन एरिया? ट्रॉपिकल. Very good. Tropical regions in the plantations are mostly found in tropical regions of the world. It's enough. आपको तो आते हैं सारे पॉइंट्स, आपको सिर्फ उनको कंपाइल नहीं करना आ रहा है ना. आपको एक एक करके तो सारे पॉइंट्स ही आ रहे हैं, तो यू कैन राइट. अब इसको कैसे करेंगे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट it is a type of commercial farming. It is a type of. Question is, what is plantation agriculture? It is a type of. In this, single crop is grown such as any, आप कोई भी मेंशन करो, such as tea, coffee, sugarcane, rubber, etc. In this, single crop is grown such as tea, coffee, sugarcane, rubber, etc. It requires, hurry up, tell me, it requires. Very good. Large amount of labor and capital. It requires large amount of labor and capital. Very good. और बताओ, it requires. Very good. It requires develop transport network. It requires develop transport network. Or it is mostly found in tropical regions of the world. It is mostly found in tropical regions of the world. Tropical regions of the world. Is it clear? Plantation. Listen again. It is a type of commercial farming. In this, single crop is such as good. It requires large amount of. Next, it requires developed transport network. Next, it is found mostly in. It is found mostly in tropical regions of the world. Is it clear? Shifting cultivation को हम और क्या कहते हैं? Slash and एक और नाम भी है. It is known by different names in different parts of the world. For example, rocaine. Very good. Rocaine
मिल्फाइन, ठीक है, कोई भी आपने बताने, बट यू हैव टू लर्न ऑल, सारे लर्न करने हैं। क्वेश्चन में लिखते वक्त चाहे आप एक लिख के एग्जांपल बता दो बस, बट आपको लर्न सारे करने हैं फॉर एमसीक्यू। नेक्स्ट, इन दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड by felling the trees or by burning. Then seeds are sown in the ashes, and then cultivators leave on the plot till the soil loses its fertility. Then they shift to Next plot. it means rotation wise agriculture है ना ये. Then they shift to next plot. और crops such as potato, cassava, maize, etc. are grown. Is it clear? अब इसके डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन ही होती है। अब पहले क्योंकि एक हमने कहा, हम खुद कह रहे हैं बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बाय बर्निंग, तो सबसे पहले मेन जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। आपको समटाइम्स बाय बर्निंग एक्सपेंसिव वुड टिम्बर वुड आल्सो गेट बर्न, ये भी बताओ। फिर आप बताओ कि स्मॉल प्लॉट होता है उनके पास, कल्टीवेटर्स के पास क्या होता है, एंड वो सफिशिएंट टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन। और वेरी गुड, Serene has given the answers. This leads to soil erosion. क्या होता है इससे? Very good girl, Serene. This leads to deforestation होती है, soil erosion होता है, और एक लार्ज पॉपुलेशन को अगर हम बोले टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ पे सफिशिएंट क्रॉप्स नहीं होती। वैसे भी आप बताओ कि इसमें जो ट्रीज हैं उन्हें एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया से बर्न किया जाता है। समटाइम्स एक्सपेंसिव वुड सच एज टिम्बर वुड आल्सो गेट। और क्या बता सकते हैं इसमें, और क्या लॉस होता है हमें? कल्टीवेटर्स के पास बड़े बड़े प्लॉट्स नहीं होते, उनके पास एक लिमिटेड सा एरिया होता है ना, और वो उतनी सी जगह पे एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नेम द फाइबर क्रॉप्स। आपने दोनों ही फाइबर क्रॉप्स बतानी है। प्लीज टेल मी द टू फाइबर, कॉटन एंड जूट। अगर पेपर में आपको पूछा जाए गोल्डन फाइबर, तो आप किस पे नोट लिखोगे? जूट के लिए फिर लिखोगे आप। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। अब आपने कॉटन एंड जूट दोनों की ही क्लाइमेटिक कंडीशंस लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव आंसर ऑफ द ए पार्ट। कॉटन एंड जूट आर द फाइबर क्रॉप्स, पहले तो इतना ही बताओगे, साथ में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट इज नोन एज। अब आप दोनों के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बताओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट कॉटन। पहले आप कॉटन के बारे में बता दो, हरी आप। वेरी गुड। वेट, आप लिखोगे क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्स फॉर दीज टू क्रॉप्स। नंबर 1 कॉटन, दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की अलग अलग है। तो कॉटन लिख के आप लिखोगे it requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, and bright sunshine for its growth. Is it clear? कॉटन में आप बताओगे it requires, क्या चाहिए उसे? हाई टेम्परेचर, लाइट, how many days frost-free, and sunshine कैसी? Bright sunshine. Now is it clear? It requires high temperature, light. It requires high temperature, light, 210 frost free, and bright sunshine. So cotton के लिए clear? Next, jute. It requires high temperature. Very good. It requires high temperature, heavy rainfall, and humid climate. First, it requires high temperature, heavy rainfall, humid climate. It requires high temperature, heavy rainfall. उधर आपने कैसी rainfall लिखी है? Light. उधर आपने frost free days बोले हैं, इधर आप कह रहे हो humid climate. कैसा climate? उधर आपने bright sunshine बोली है ना,
आपने फ्रॉस्ट फ्री डेज बोले हैं, इधर आप कहोगे ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, उधर आपने लाइट रेनफॉल बोली है। हाई टेम्परेचर दोनों में सेम है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड, दोनों लर्न। कॉटन एंड जूट। अब मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा, you have to learn climatic conditions, soil of different groups. For example, पेपर में कोई भी आएगी, no need to write in copy, learn from your book. For example, rice, आपको पेपर में पूछा जा सकता है climatic conditions and soil के बारे में बताओ. Next, wheat. Listen carefully. Rice, wheat, millets, maize, cotton and jute you have done. Coffee, tea, you have to learn. Is it clear? ये नहीं, एक मिनट, बुक की बैक पे दिया है कॉटन एंड जूट, हो सकता है कॉटन एंड जूट को पेपर में पूछे ही ना, फिर आपको दे दे, एक सेट को जैसे दे दिया राइस, दूसरे सेट को दे दिया व्हीट, तो ये तो जरूरी नहीं है ना जो बैक पे है वही आएगा पेपर में। नो, आपको कॉटन एंड जूट इज गिवन, बट कॉटन एंड जूट ये शॉर्ट ही नहीं है कि पेपर में भी आ जाएगा। आपको सारी क्रॉप्स करनी है, ओनली लर्निंग के लिए आप बुक से करो, कॉपी में रिटर्न वर्क में आप कॉटन एंड जूट करोगे, पर कॉपी पे डिपेंडेंट थोड़ा रहना आपने, पेपर के लिए आप कॉपी में से थोड़ा लर्न करते हो, आपको ये सारी क्रॉप्स लर्न करनी है, तो कहीं ना कहीं आप नोट कर लो, यू हैव टू लर्न ऑल द क्रॉप्स। इज इट क्लियर? नोट डाउन, you have to learn all the crops. For example, hurry up, wheat, rice, maize, millets, cotton, jute आप कर लिया आपने, coffee and so these are extra. Is it clear? ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको लर्न करने हैं। और भी बताती हूँ और कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक है। नेक्स्ट, इस लेसन के और भी कितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लिसन केयरफुली। For example, come to the first page. हाँ जी, organic farming. What do you know about organic farming? In this type of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. It's on page number 40, organic farming. Page number 40, organic farming. Next, define subsistence farming. आप उसके टू पार्ट्स भी साथ में बताओगे। Which are the two parts of subsistence farming? Intensive subsistence farming, then primitive. Primitive is also divided into two parts. You have done shifting, you have done nomadic herding, आप खुद बना सकते हो, ठीक है ना। Next, listen carefully. Define mixed farming. Can you write? प्लांटेशन आपने कर लिया, मिक्स फार्मिंग कर लोगे। डिफाइन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इज इट क्लियर? डिफाइन मिक्स्ड फार्मिंग, डिफाइन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एंड देन यू हैव डन प्लांटेशंस। मेजर क्रॉप्स मैंने अभी बोली है, आपको सारी करनी है। इट मीन्स यू हैव टू रीड द चैप्टर थोरोली। कोई भी टॉपिक पेपर में क्वेश्चन बन के आना है। आप कहोगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का तो बैक पे क्वेश्चन ही नहीं है, बट सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी आस्क्ड। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे नोट आ सकता है। राइट नोट ऑन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आपको दोनों फॉर्म्स पता आएंगी, तो आप बताओगे ना कौन कौन सी टू फॉर्म्स है। यू हैव डन ओनली वन, आप शिफ्टिंग कर चुके हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेकेंड इज नोमैडिक हर्डिंग, तो आपको इसकी भी 4-5 लाइंस आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग तो आपको पता ही है, क्रॉप्स को बेचने के लिए जो होती हैं, तो उसमें आपने कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन सी, मिक्स फार्मिंग, देन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एंड देन प्लांटेशन। प्लांटेशन तो आप बैक पे कर ही चुके हो, बट आपको मिक्स फार्मिंग करनी है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करनी है। इज इट क्लियर? फिर आपकी क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स तो मैंने बोला ही है कि कोई भी क्रॉप पेपर में आएगी, एंड कोई भी क्रॉप मैप में भी आएगी।
वीट कहाँ पे लोकेट कर दोगे? पंजाब, चलो आपको यही पूछती हूँ, वीट पंजाब, गुड। राइस, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, वेस्ट बंगाल। अब आप मुझे एक एक करके क्रॉप का बताते जाना। वीट पंजाब, राइस, नेक्स्ट इज, एक मिनट, मिलेट्स, राजस्थान, वेरी गुड। मेज, अगेन पंजाब, पंजाब में कितनी है? आप उत्तर प्रदेश भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट फुल मार्क्स। वैसे पंजाब कर दोगे तो ओके। कॉटन, गुजरात, नंबर 1 गुजरात ही है। जूट, कॉफी, टी, वेरी गुड, कर लेना आपने। अब एक मिनट, आप मुझे बताओ कि मैप का भी आपको आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? वैसे हम करेंगे मैप, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब food security exists when all people at all time have access to sufficient safe and nutritious food to meet their demands and food preferences for an active and healthy life. Organic farming. Then who discovered coffee plant? It's on page number 43. आपको एक मिनट, आपको ऐसे आ सकता है कि आपको कॉफी की क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल पूछी जा सकती है एंड साथ में पूछा जा सकता है हु डिस्कवर्ड कॉफी प्लांट। और आप काल्दी, हु डिस्कवर्ड कॉफी प्लांट? यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट, कंपेयर, ये मेन क्वेश्चन है। कंपेयर द फार्मलैंड ऑफ किसकी? इंडिया एंड यूएसए एंड इंडिया, चलो वेरी गुड। अगर ये कंपेयर आ गया, एक मिनट, तो एक साइड एक लाइन लगा के हम करते होते हैं ना, एक साइड इंडिया, एक साइड यूएसए। इंडिया में बताओ कि फार्मलैंड्स आर नॉट सो, यहाँ पे तो हमने किया था सिर्फ 1.5 हेक्टेयर्स। यूएसए का तो आप कह रहे थे 300, तो आप यूएसए का बताओगे कि लार्ज फार्मलैंड्स। अब कहाँ के फार्मर्स जो हैं दे आर वेरी रिच, दे वर्क एज बिजनेसमैन। इंडिया में तो वो एज ए फार्मर ही वर्क करते हैं, ठीक है ना? एंड इंडिया के फार्मर्स आर बर्डन विद डेट, वो तो बहुत रिच होते हैं, है ना? इनके फार्म्स टोटली मैकेनाइज्ड, उनके फील्ड्स आर टोटली मैकेनाइज्ड। अब ये जो इंडियन फार्मर्स हैं, इनको, इनके पास क्या नहीं होते? स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है। इनको मार्केट में अपनी क्रॉप्स तब भी बेचनी पड़ती हैं व्हेन मार्केट्स आर नॉट इन देयर फेवर। और उधर उनको बताओ, ऑनलाइन है उनका सारा सिस्टम सेटअप, ऑनलाइन है सारा, ठीक है? हाँ, उनका सारा सिस्टम ऑनलाइन सेटअप है। हाँ, उनकी क्रॉप्स, इंडियन पीजेंट्स की क्रॉप्स इंश्योर्ड, इन्हें बैंक से लोन लेने पड़ते हैं कई बार टू बाय HYV की फुल फॉर्म, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इनको लोन लेने पड़ते हैं फ्रॉम बैंक और फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। वो तो ऑलरेडी रिच होते हैं। यूएसए के पीजेंट्स दे आर वेरी रिच। Whole work done with the help of machines in USA. Here manual labor is needed. इंडिया में आप कहोगे manual labor is, उधर आप कहोगे whole work is done with the help of machine. अब एक मिनट, अगर आपको इंडिया एंड यूएसए को कंपेयर करना है तो कैन यू राइट? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं बैक पे, तो आप कर सकते हो ना? तो अगर ये सारे टॉपिक्स ही जिस बच्चे को आ गए उसको एग्रीकल्चर चैप्टर पूरा ही आ गया। इज देयर इज एनी प्रॉब्लम? यू कैन शेयर विद मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, यू कैन टेल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।